Welcome friends. This is the third video in Excel training series, and in this video today we are going to have a look at two very important and crucial functions in Excel which are very often used, and these functions are very much usable whenever you are trying to make dashboards. So I think this video would be very much crucial for those who are looking to do certain kind of dashboards or who are already struggling with some kind of usability of these two special functions in Excel, that is COUNTIF and SumIf. So friends, first of all I would like to tell you that the COUNTIF and SumIf functions are very similar. They're very similar, or I would say the functionality or the usability of these functions is very similar to the count and sum functions. So for example, if I say that I have certain number of rows already filled in my data, for example, let me consider this G column. Let me make another column here quickly. So I'll just write names of few destinations. So let me now do a quick count of these three. So count is a very simple formula. I can just write count and just try to add the just try to count these three functions here. So this will not return me because I've not written a. Count a would return me 3. So guys, before I get into the COUNTIF or SumIf functions, I would tell you about count and sum quickly. So let me start with the count function first. Let's open up another sheet so that you guys can understand better. So guys, this video is going to be a mix of both English and Hindi, so that all of you who are watching it in and who are the English audience, they can watch it in English, and those who are the Hindi audience can watch it in Hindi as well. So ये दोनों का mix रहेगा. So I would just start with the COUNTIF function. So अगर हम देखें count को सबसे पहले हम समझ लेते हैं और उसके साथ हम समझ लेते हैं sum को. So we'll understand count and we'll understand sum. So let me first quickly write some data here. तो एक data मैं बना लेता हूँ यहाँ पे. For example, let me write the names of certain vegetable names, right? And here I would say quantity and the price. Vegetables में मैं ले लेता हूँ जैसे lady finger है. Then we have potato, tomato, cabbage. तो फिलहाल के लिए I'll just take these. Quantities I'll write here. Quantity में मैं लिख देता हूँ. For example, say lady fingers में let's write it in kg. This would be in kg. Lady finger, for example, 5 kgs, potato 2 kgs, tomato 2 kgs, and cabbage again 4 kgs, right? Prices में लिख देता हूँ quickly. Rough prices में लिख रहा हूँ यहाँ पे. 5 kgs would be around 250 से, 2 kgs around say 50, 2 kgs around say 75, and cabbage at 4, let's assume it's 80, right? So अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं. So whenever we are trying to use the count function, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि count function कहाँ यूज़ किया जाता है. Count function itself says we are counting something. For example, यहाँ पे अगर मुझे कहा जाता है if I am being asked, there is a question which is being asked. So tell me the count of vegetables. टोटल काउंट मुझे वेजिटेबल्स का अगर जानना है इसमें, तो I'll write count and I'll select all these here. तो यहाँ मुझे ज़ीरो मिल रहा है. सो हमें ये समझना है कि यहाँ पे ज़ीरो क्यों आ रहा है. सो गाइस, यहाँ पे दो तरह से काउंट फंक्शन को इस्तेमाल किया जाता है. Count is being used in two different forms. There are two different formulas for count. This count which I have used here right now,
दिस इज़ ओनली फॉर द न्यूमेरिक वैल्यूज़। अगर ये मैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ अगर इनकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे मूव कर दूँ इसको, दिस फंक्शन विल वर्क। यहाँ पे मुझे 4 रिटर्न करेगा, सो इट्स बेसिकली 1 2 3 एंड 4। और एक दूसरा फंक्शन होता है काउंट करने के लिए, काउंट ए। दिस वर्क्स फॉर द टेक्स्ट वैल्यूज़ जो यहाँ पे अभी है मेरे पास। तो टेक्स्ट में मैं देखता हूँ यहाँ पे काउंट ए वर्क्स वेल हेयर, whereas count works well in the numeric column। तो count का ये हमारा रेलेवेंस या यूजिबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं क्विकली सम की। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है सम ऑफ प्राइस बीइंग पेड फॉर ऑल वेजिटेबल्स, सम ऑफ द प्राइस विच इज़ बीइंग पेड फॉर ऑल द वेजिटेबल्स। अगर मुझे ये पता करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सम कर लूँगा क्विकली यहाँ पे इस कॉलम का, एंड दिस विल रिटर्न मी 455 इज़ द टोटल प्राइस विच इज़ बीइंग पेड फॉर ऑल द वेजिटेबल्स। So guys, this I have told you that count and sum are the two functions from which these advanced functions which we call as COUNTIF, SUMIF, COUNTIFs and SumIfs, they are being derived। तो अगर हमने ये समझ लिया कि काउंट और सम को कैसे यूज़ किया जाता है, तो नेक्स्ट लेवल हमारा रहेगा कि काउंट इफ़ और सम इफ़ को कैसे यूज़ किया जाता है और इनकी रेलेवेंस कहाँ पे है। यहीं से अगर मैं क्विकली बात करूँ, काउंट में सिंपली मैंने काउंट करा, मुझे पूछा गया था वेजिटेबल्स को काउंट करके बताइए, तो मैंने वेजिटेबल्स को काउंट करके बता दिया। यहाँ पे अगर दो चीज़ें और ऐड कर दी जाती हैं, यहाँ छोड़ते हैं, हम चलते हैं अपने रियल डेटा पे। फॉर एग्जांपल आई मेड सम डेटा हियर, तो यहीं से देख लेते हैं। सो आई हैव पुट अ सेपरेट एक्सरसाइज। सो लेट्स हैव अ लुक एट द डेटा फर्स्ट। ये मेरे पास डेटा है जिसको यूज़ करके आई विल टेल यू कि काउंट इफ़ को कैसे यूज़ किया जाता है। डेटा में मेरे पास कुछ ऑर्डर्स हैं, दीज आर द ऑर्डर नंबर्स, देन आई हैव द डेट्स, उसके बाद ड्राइवर का नाम है, आइटम है, नंबर ऑफ़ आइटम्स, ट्रांसपोर्ट एंड डेस्टिनेशन। सो ये बेसिकली डेटा देख के मुझे पता चल रहा है कि दिस इज़ द डेटा ऑफ अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसमें वेरियस ऑर्डर्स का डेटा दिया गया है कि इस ऑर्डर में ड्राइवर का नाम क्या था, आइटम कौन सी शिप की गई, ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या था और कहाँ पे उसको डिलीवर किया गया, कितने आइटम्स डिलीवर किए गए। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डेटा विच इज़ देयर विद मी। इस डेटा को यूज़ करके let's try and understand that how we can use the COUNTIF function। So let's see what all questions we have here। सबसे पहला जो सवाल पूछा गया है that is orders in Delhi। दिल्ली में कितने ऑर्डर्स डिलीवर किए गए। सबसे पहले guys let's try and see, इस फिल्टर को यूज़ करके हम लोग देख लेते हैं डेटा में कि दिल्ली में कितने ऑर्डर्स डिलीवर किए गए। अगर मैंने काउंट करूँ सो दिस वुड बी, सो काउंट यहाँ पे भी एक्सेल में आता है, जैसे यहाँ दिखा रहा है 4 ऑर्डर्स वर डिलीवर्ड इन दिल्ली। अब इस डेटा को यूज़ करके हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, लेट्स ट्राई एंड डू दैट। तो चलिए देखते हैं काउंट इफ कैसे काम करता है। सो दिस वुड बी इक्वल्स टू काउंट इफ, इट सेज व्हाट इज़ द रेंज विच यू आर गोइंग टू यूज़। सो रेंज में हम लोग वो वाला पर्टिकुलर कॉलम लेंगे जहाँ पे वो मेरा डेटा अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में ऑर्डर्स अगर मुझे ढूंढने हैं तो मुझे पता है कि जो कॉलम है दैट इज़ डेस्टिनेशन कॉलम, यहाँ पे ही मुझे पता चलेगा लोकेशन के बारे में। सो आई विल गो एंड सिलेक्ट दिस कॉलम फॉलोड बाय अ कॉमा। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया। व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे दिया गया है दिल्ली। यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर्स इन दिल्ली लिखा है इसलिए मैं मैनुअली यहाँ पे लिख देता हूँ। So I'll manually write here Delhi, right? तो दिल्ली लिखते ही इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे एंड वी विल गेट 4, राइट। सो इस तरीके से हम काउंटिव फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोवेव ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोवेव ऑर्डर्स। अब सबसे पहले ये देखना है कि कौन से कॉलम में हमारे पास ये माइक्रोवेव आइटम। सो दिस इज द आइटम कॉलम विच इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द क्वेश्चन। यहाँ पे माइक्रोवेव के कितने ऑर्डर्स हैं वो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंड वी नो दैट द काउंट इज 5। तो हमने पहले इसको चेक कर लिया है। लेट्स गो एंड ट्राई अ फॉर्मूला ऑफ काउंटिफ। काउंटिफ को यूज़ करेंगे। रेंज हमें पता है आइटम कॉलम से आएगा
एंड नेक्स्ट हमें यहाँ माइक्रोवेव के ऑर्डर्स हैं, सो आई विल हैव टू राइट माइक्रोवेव एंड आई विल गेट 5। सिमिलरली इसी तरीके से हम काउंट इफ को यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सिनेरियोज में हम काउंट इफ को यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस दिस इज़ वेरी सिंपल, ये तो काफ़ी आसान था कि हमने एक पर्टिकुलर चीज़ का बता रहे हैं, हम एक आइटम के ऊपर हमने काउंट अप्लाई किया विद द सिचुएशन। मुझे पता है मुझे काउंट करना है, मुझे एक सिचुएशन दी गई है, उस सिचुएशन को यूज़ करके आई हैव टू काउंट सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स, दैट्स वेयर वी यूज़ काउंट इफ। अब काउंट इफ्स एक अलग फंक्शन है जिसमें हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हो सकते हैं। काउंट इफ में मैं एक ही क्राइटेरिया अप्लाई करके काउंट कैलकुलेट कर सकता हूँ, काउंट निकाल सकता हूँ। काउंटिफ्स में मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिनको यूज़ करके मैं काउंट निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे सवाल ले लेते हैं कि मुझे कहा गया कि आप ये बताइए हाउ मेनी ऑर्डर्स delivered in Delhi were microwave orders, right? माइक्रोवेव के कितने ऑर्डर्स दिल्ली में डिलीवर किए गए? सो देर आर टू सेपरेट क्राइटेरिया हेयर। नंबर 1 इज दिल्ली एंड नंबर 2 इज माइक्रोवेव। तो दो सेपरेट क्राइटेरिया है मेरे पास, दिल्ली और माइक्रोवेव। दिल्ली इज द लोकेशन एंड माइक्रोवेव इज द आइटम विच वॉज बीइंग डिलीवर्ड। अब यहाँ बात कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम यूज़ करते हैं काउंटिफ्स। काउंटिफ्स में हमारे पास आता है दिस फॉर्मूला स्टार्ट्स विद क्राइटेरिया रेंज 1। पहले मैं लोकेशन की बात कर लेता हूँ, जो मैंने दिल्ली कहा। सो क्राइटेरिया रेंज 1 वुड बी दिस कॉलम, फॉलोड बाय क्राइटेरिया जो मैंने सेपरेट कॉलम में लिख दिया, सेपरेट सेल में मैंने लिखा हुआ है, सो आई विल राइट इट, आई विल सिलेक्ट दैट। क्राइटेरिया रेंज 2 मुझे पता है आइटम है, आई विल गो हियर और आइटम को मैं सिलेक्ट करूँगा एंड आई विल गो बैक हियर, माइक्रोवेव यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड आई विल प्रेस। सो यहाँ से मुझे पता चला कि दिल्ली में माइक्रोवेव के 2 ऑर्डर्स डिलीवर किए गए। सो गाइस लेट्स गो बैक टू आवर डेटा एंड सी कि क्या वाकई में दिल्ली में माइक्रोवेव के जो ऑर्डर्स थे, क्या वाकई में वो 2 थे? इट शुड बी 2। सो 2 ही ऑर्डर्स वहाँ पे डिलीवर किए। सो दिस वैलिडेट्स कि हमने जो फॉर्मूला यूज़ करा है काउंटिफ्स का वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है जिसे हमने यूज़ करा है यहाँ पे। सो गाइज दिस इज़ हाउ काउंटिफ्स एंड काउंटिफ वर्क्स, राइट? तो अब आप लोगों को ये पता चल गया कि काउंट इफ हमें तब यूज़ करना है जब हमारे पास काउंटिंग हमें करनी है किसी चीज़ की विद अ क्राइटेरिया, देन वी यूज़ काउंट इफ। और इसी तरीके से काउंट इफ्स कब यूज़ होगा? जब हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज रहेंगे और हमें काउंटिंग करनी है, देन वी हैव द काउंटिफ्स फंक्शन। गाइस इसी तरीके से समिफ एंड समिफ्स फंक्शन का भी इस्तेमाल होता है। तो चलिए जल्दी से हम लोग रॉ डेटा 2 में चलते हैं। दिस इज़ अ सेपरेट एक्सरसाइज आई प्रिपेयर्ड, जिससे हम लोग ये समझेंगे कि समिफ और समिफ्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट्स गो टू एक्सरसाइज नंबर 2। क्विकली आई जस्ट गो टू द प्राइस टोटल। जैसे यहाँ पे बात कर रहा है, सबसे पहले डेटा समझ लेते हैं। सो गाइज व्हेन एवर यू स्टार्ट वर्किंग विद एनी ऑफ द एक्सेल एक्सरसाइजेज, सबसे पहले ये ध्यान रखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेटा फर्स्ट, क्योंकि जब तक हम डेटा को समझेंगे नहीं तब तक हम लोग उस एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। Because without understanding an exercise, you'll not be able to identify that which particular formula is going to help you find a solution, right? Whether you're going to use COUNTIF, whether you're going to use SumIf, or you're going to use some other formula in Excel, that you're going to understand only once you have the full knowledge of your data. So let's understand the data first. यहाँ पे समझ लेते हैं, हमारे पास ये डेटा सर्विसेज का डेटा है। अलग अलग तरीके की सर्विसेज दी गई हैं और यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जिसने ये सर्विस दी है, पेमेंट्स हुए हैं इन सर्विसेज की एंड द प्राइस इज ऑल्सो गिवन। सो दिस इज बेसिकली द सर्विस डेटा। नाउ लेट्स गो एंड सी प्राइस टोटल मुझे कैलकुलेट करना है शेविंग का। सो यहाँ पे गाइस वील जस्ट राइट समिफ्स। हम समिफ की बात करें, सिंगल क्राइटेरिया, जैसे मैंने पीछे कहा काउंट इफ तब यूज़ होगा जब सिंगल क्राइटेरिया है, काउंट इफ्स तब यूज़ होगा जब मल्टीपल क्राइटेरिया। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही क्राइटेरिया है और वो है शेविंग। शेविंग एज अ सर्विस जब दी गई तो उसका प्राइस टोटल क्या था? सो आई जस्ट राइट समिफ
I'll have to select the range. तो रेंज के लिए यहाँ पे आता हूँ, दिस इज द रेंज, सर्विसेज के अंदर है क्योंकि. देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज व्हाट, क्राइटेरिया इज शेविंग, राइट. एंड देन वी विल गो बैक एंड सी कि हमारा जो पेमेंट दिया गया है, सम रेंज हमारा यहाँ पे है. दिस इज द सम रेंज जो मुझे करना है, प्राइस को मुझे सम करना है. सो आई विल जस्ट टेक द प्राइस and this is what it will give me. Shaving के लिए 717 rupees is the total price which is being paid. So guys, we can drag this formula down, लेकिन उससे पहले मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा. B3 मैंने लिया है, so B should be fixed, right? And we can just drag it and see the prices for all the different services. So this is how SumIfs is going to be used, right? तो अब देख लेते हैं एक बार, लेट्स वैलिडेट कि हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं. लेट्स सेलेक्ट द सर्विस शेविंग हियर, शेविंग मैंने सेलेक्ट किया, एंड लेट मी जस्ट डू अ क्विक सम. तो यहाँ पे यू कैन सी द सम इज 717 एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव फाउंड हियर. So just to be sure, let's do another random check for dyeing. So let's see for the dyeing service. This is the dyeing service. The total price paid is 1650 and this is what we have got. So exactly we have got the same numbers which are there from the raw data, right? अब इसमें हम SumIfs को समझ लेते हैं जल्दी से. अगर मुझे दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, शेविंग एज अ सर्विस, बताइए ज़रा, शेविंग एज अ सर्विस बीइंग डन बाय वन इंडिविजुअल और सॉरी पेड इन कैश. अब हम ये समझ लेते हैं कि शेविंग सर्विस व्हेन पेड इन कैश गिव मी द टोटल अमाउंट. तो इसमें हम लोग ये निकालेंगे कि कितना पैसा कैश में दिया गया शेविंग सर्विस के लिए. सो देयर आर टू डिफरेंट क्राइटेरिया, वन इज सर्विस, अदर वन इज पेमेंट बीइंग मेड इन कैश. तो चलिए let's use the SumIfs and here it would be sum range मुझे पता है, sum range मेरा जो है वो ये रहेगा because I have to finally calculate the price, followed by criteria range 1. मुझे पता है criteria range 1 जो है वो सर्विस रहेगी. this is criteria range 1 followed by criteria 1 which is service shaving, right? Followed by criteria 2 which is cash or credit card. So this is criteria 2 followed by the cash, right? And this is what it's going to give me. 414 is the total price paid for shaving in cash. So guys, let's go back to the data and validate this. यहाँ पे देख लेते हैं shaving payments made in cash, and let's sum it up and this gives me 414, right? So that means we have calculated it correct. So guys, इस तरीके से हम लोग SumIfs and CountIf इन सबको यूज़ कर सकते हैं. So these two formulas, so these are two formulas with a situation or a scenario being added. जैसे हमने कहा CountIf के दो formula है, CountIf and CountIfs. Similarly SumIf और SumIfs दो अलग अलग formulas हैं. So there are these four formulas basically can help you in understanding your data better, in getting multiple scenarios out of your data, creating different kind of analysis. तो बहुत complex analysis आप इन functions को use करके कर सकते हैं. So this was a very simple data set जो मैंने लिया हुआ था. Similarly, if you have any kind of data set, a huge data set when you have, so you can create multiple scenarios from that data set and you can use these functions and can derive multiple insights out of it. तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. And if you like these videos, please subscribe to my channel and please also like the videos so that all these video series which are being made for Excel trainings
so we can have certain inputs and feedback from your end. Also you can mention that in the comment section, whatever you want to hear from me. If you want more examples to be included in it, I'll do that. If you want different scenarios to be created, so that we can add those scenarios in our upcoming videos, and we can also have a engagement with the audience directly. So guys, thank you for watching, and happy learning Excel. Thank you.